Hi students, welcome back to our channel. Today we will continue with the animal classification. Earlier we have studied the classification of plants. Now the animals. As you know already, animals have the heterotrophic mode of nutrition. They do not make their own food. They get their nude from the other. Now this all animals, they are kept in animal kingdom. Here first, earlier we have divided the animal kingdom into the various groups, that is invertebrates and vertebrates. No, this invertebrates have 9 phylum. There we have protozoan. Now the protozoans are separated. Now protozoa is divided at the unicellular, and rest all the animals belonging to vertebrates and invertebrates, they are multicellular. Unicellular protozoans, separate group we have divided here. According to this, that the protozoa, they are aquatic, they are unicellular. All life activities are completed by the single cell only. This you can understand simply by reading the diagram of amoeba. It is irregular in shape. It has only animal cell, so cell wall is absent, only cell membrane or plasma membrane is present. So this is plasma membrane. All protozoans, they are unicellular. What happened? This is the nucleus, and these are pseudopodia. And here the fluid filled, it is known as cytoplasm. Now here this cytoplasm may be differentiated into two, which is present in the center, it is known as endoplasm, and which is present towards outer side, it is ectoplasm, but not at here. Now here it has contractile vacuoles and food vacuoles. There you are seeing, they are the food vacuole. Food vacuoles are there, and important structure, that is contractile vacuole. Now this contractile vacuole, it is the main function osmoregulation, means regulation of water. As they are all aquatic, found in water, so what happens, their body will go on absorbing water. अगर बाहर से बॉडी पानी, ये पानी में रहते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पानी अंदर जाता रहता है, क्योंकि बाहर पानी का कंसंट्रेशन कम है, प्लाज्मा में इंटरेस्ट है, तो पानी एब्जॉर्ब होगा, तो एक्सेस वाटर बॉडी में एक्यूमुलेट होगा, तो उसको बाहर भी निकालना है। तो बाहर निकालने क्या होता है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल क्या काम करता है, ये इसकी बॉडी से एक्सेस वाटर और जो भी चीजें इस सेल को नहीं चाहिए, अनवांटेड मटेरियल्स, दे गेट एक्यूमुलेटेड इन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ये बनता है, यहाँ बनेगा, धीरे धीरे जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास आएगा, ये बस्ट होके बाहर निकल जाएगा, और फिर से एक नया वाटर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाता है। और जो फूड, जैसे ये आया, मान लीजिए कोई फूड पार्टिकल ये आया, यहाँ से मैम डिजॉल्व हो जाएगी और ये फूड अंदर आ जाएगा। तो इस तरह से ये अपना, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म है एनिमल्स का, प्रोटोजोन्स का। जैसे आपका प्रोटोजोन्स है, प्रोटोजोआ है, ये जो मैंने दिया है, ये डायग्राम है अमीबा, द सिंपलेस्ट ऑर्गन। अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, दो यूग्लिना इज कंसिडर्ड इंटरमीडिएट बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल, बिकॉज यूग्लिना हैज क्लोरोफिल and it lacks cell wall, so neither it is classified as plant, neither it is classified as an animal, because cell wall present, then it's a plant cell. But in euglena, cell wall is absent but chlorophyll present, though it is also aquatic, so it is an intermediate link between plant and animal. Okay, now you come back to our topic, that the animal kingdom. Now this animal kingdom, now this is about the unicellular. All protozoa, they are unicellular. Now this unicellular group, nowadays it is separated. Earlier it was included among the invertebrates, but now they have classified separate as in protista group, right? Later we will study the 5 kingdom classification also. So this animal kingdom, they are heterotroph, they are multicellular, they cannot make their own food material. And now these animal kingdom, they are divided into two groups, vertebrates
and invertebrates. Vertebrates are those animals which has vertebral column. Naturally, they are the higher organism. And invertebrates, they do not have any vertebral column. They are soft animals without vertebral column. Only the group of the cells are present over there. They are all known as invertebrates. And as they are classified, as you goes on moving, then complexity in the organism. और जैसे ही आप यहाँ पर फाइलम्स में आगे बढ़ेंगे तो आप क्या देखते हैं, पॉरीफेरा सिंपलर है, निडेरियंस उससे कॉम्प्लेक्स है, प्लेटीहेलमिन्थेस उससे कॉम्प्लेक्स है, ये आगे उससे कॉम्प्लेक्स होगा. ये हम एक एक करके पढ़ते हैं. दे आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स: पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा और निडेरियंस, प्लेटीहेलमिन्थेस, निमेटोड्स, एनिलिड्स, आर्थ्रोपोड्स, mollusca and echinodermata. Vertebrates, they were divided into 5 classes: Pisces, amphibians, reptiles, aves and mammals. These 5 groups. Now first here we are starting with the first one, Porifera. Pori means pore, the phylum which has pores in its body. Generally they are found in oceans. They are found in oceans. They are multicellular. They were not free floating. They do not move. They do not have any locomotory organ. They were attached on the surface at the bottom in the water. जो पानी की सरफेस के अंदर जो बॉटम होता है, जहां पानी भरा होता है, तो उसके अंदर बेस या साइड्स में ये अटैच्ड होते हैं. इस अटैच में इनका सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, वाटर की वजह से फ्लो करते हैं. इसके बॉडी में क्यों, यूं सुराही के आकार के जैसे ये बॉडी है, इसमें पूरे चारों तरफ छेद होते हैं. उन छेद को हम कहते हैं ऑस्टिया. और ऊपर राउंड ओपनिंग होती है जिसे हम कहते हैं ऑस्कुलम. छेदों से पानी अंदर जाता है. इसके अंदर हॉलो कैविटी होती है. अंदर ये हॉलो कैविटी होती है. इस कैविटी को हम कहते हैं स्पंजोसी. दे हैड हॉलो कैविटी इनसाइड, दैट इज टर्म्ड एज स्पंजोसी. ऑस्टिया से पानी अंदर, ये जो ऑस्टिया स्पोर्स होते हैं, इनसे पानी अंदर जाएगा और यहां से होते हुए यहां से पानी बाहर आता है ऑस्कुलम से. और ये सिंपल मल्टीसेलुलर हैं. सारे सेल्स एक से ही होते हैं और इसी में पानी के जाने के साथ ही जो खाना होता है वो ये ले जो चाहिए उसको वो इसके सेल्स एब्जॉर्ब. ये सिंपल सेल्स होते हैं ऐसे इसमें, और ये बाहर की तरफ. बस ये इसका स्ट्रक्चर होता है. सबस्टेशन से अटैच्ड होते हैं, ऑस्कुलम होते हैं, कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं होता है. ये सी में पाए जाते हैं. ये सिंपल होते हैं. आर यू क्लियर? फाइलम पॉरीफेरा, दे आर पोर बियरिंग ऑर्गन्स. इनके बॉडी में पोर्स होते हैं. ये समुद्र में पाए जाते हैं. समुद्र के तल में ये अटैच्ड होते हैं जिसको कि हम सबस्ट्रेटम कहते हैं. इसके बॉडी में छेद होते हैं तो उनको हम ऑस्टिया कहते हैं. और ऊपर की तरफ गोल छेद होता है, ये भी ओपनिंग है जिसको हम ऑस्कुलम. ऑस्टिया से पानी अंदर जाता है, ऑस्कुलम से पानी बाहर निकलता है. और अंदर हॉलो कैविटी होती है, सुराही जैसे ये हॉलो कैविटी होती है. इस हॉलो कैविटी को हम स्पंजोसील कहते हैं. राइट? सो दैट है एग्जाम्पल ल्यूकोसोलिनिया, साइकन, स्पॉन्जेस, ये सारे थे. अच्छा, अब ये सिंपल है. अब आप नेक्स्ट फाइलम पर आइए, निडेरियंस. इनको सीलेंट्रेट्स भी कहते हैं. हाइड्रा, इसमें भी ये भी समुद्र में पाए जाते हैं. लोकोमोटरी ऑर्गन इसमें टेंटिकल्स होते हैं. जैसे ये आपने हाइड्रा देखा. अगर सिंपल हाइड्रा को आप ऐसे ड्रॉ करें तो ये इसमें माउथ इज सराउंडेड, दिस इज द माउथ. इसमें क्या होता है, सिर्फ एक तरह के सेल्स होते हैं. यहाँ पर 8 तरह के सेल्स पाए जाते हैं और उन 8 सेल्स का अलग अलग फंक्शन भी होता है. मतलब यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो गया. यहाँ सारे सेल्स एक से होते हैं पॉरीफेरा में, जबकि निडेरिया में जो होते हैं वो कई तरह के सेल्स में डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है. यहाँ पर डिवीजन ऑफ लेबर स्टार्ट हो जाता है और इसके अंदर कई तरह के सेल्स पाए जाते हैं जिनके अलग, कुछ सेल्स फूड एब्जॉर्ब करते हैं, कुछ सेल्स ऐसे. मतलब यहाँ सिर्फ सेल्स होते हैं जो अलग अलग फंक्शन कर रहे हैं और कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है. होते सिर्फ सेल्स हैं. जैसे इसकी बॉडी में सेल्स है, ऐसे ही इसकी भी बॉडी में बस यहाँ सेल्स ही आपको मिलेंगे ऐसे और ऐसे. और अंदर ये हॉलो कैविटी है, ये पूरा कैविटी है. इसको सिलेंट्रॉन कैविटी कहते हैं. यहाँ पर क्या होता है, बाहर छेद नहीं होंगे, सिर्फ ये माउथ है, यहाँ से ही पानी अंदर जाता है. तो इसकी ये क्या होता है, ये माउथ जो है चारों तरफ, इसके चारों तरफ टेंटिकल्स होते हैं. तो उस टेंटिकल से ये भी सबस्ट्रेटम में नीचे अटैच होता है. और टेंटिकल्स यूं ऐसे यूं घूमते हैं. जैसे ये माउथ है, बॉडी है, तो ये टेंटिकल्स यूं मूव करते हैं. जैसे ही कोई फूड पार्टिकल आया, ये जो नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं
तो यूनिडब्लास्ट से अगर कोई खाने आते हैं तो ये तुरंत पॉइजनस सब्सटेंस डालते हैं, अपने को प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर कोई फूड आया, खाने वाली चीज आई जिसको लेना है, तो ये उसको टेंटिकल्स उसको एब्जॉर्ब करके माउथ के अंदर ले जाते हैं। जैसे माउथ के अंदर कैविटी में ले आते हैं तो इसमें कुछ सेल्स होती हैं जिससे कि उसको डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करती है और वो उसको डाइजेस्ट करती है। एक बार अंदर आने के बाद फिर यहाँ से सिर्फ पानी ही बाहर निकलता है, पूरा अंदर नहीं जाएगा, ज्यादा पानी नहीं जाता है इसमें अंदर। तो ये थे आपके नीडेरियंस, सीलेंट्रेटा, सीलेंट रॉड कैविटी। यहाँ एक ही तरह के सेल्स हैं, यहाँ आपने देखा कई तरह के सेल्स हो गए। ये भी समुद्र में ही पाए जाते हैं, बॉटम साइड से अटैच्ड होते हैं। माउथ जो है टेंटिकल से चारों तरफ घिरा रहता है और इसी टेंटिकल से जो ये है ये मूवमेंट भी करते हैं। जैसे यहाँ से हुआ है, टेंटिकल से ये झुक जाएंगे, यहाँ पर अटैच रहेगा, टेंटिकल्स झुक जाएंगे, टेंटिकल्स यहाँ आ जाएंगे तो ये ऊपर खड़ा हो जाएगा, ऊपर खड़ा हो जाएगा, उसके बाद लूपिंग मूवमेंट, फिर ये बॉडी दूसरी तरफ ऐसे पलट जाएगी और फिर टेंटिकल छोड़ के टेंटिकल से फिर ये सीधे, इस तरह से धीमे धीमे ये चलना शुरू करते हैं, राइट। नाउ द नेक्स्ट फाइलम इज प्लेटीहेलमिन्थेस, जिनको कि हम फ्लैट वॉर्म्स भी कहते हैं। ये सिर्फ सेल डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया। अब यहाँ पे क्या होता है, ये फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, ये प्लेटीहेलमिन्थेस, ये पैरासाइट्स होते हैं। दे आर पैरासाइट फाउंड इन द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। इसमें क्या होता है, हेड होता है, हेड पिन, हेड के जैसे आपका पेपर पिन है, पेपर पिन की तरह इसमें हेड होता है और हेड में दो जो स्कोलक्स हुक लाइक सकर्स होते हैं, जैसे ये है ऐसे इसमें सकर्स होते हैं, ये इससे ये आपकी इंटेस्टाइन में अटैच्ड होता है और ये डाइजेस्टेड फूड लेता है, इसीलिए इसको कहते हैं हेड स्कोलिक्स और द हुक्स सकर, जिससे टर्ड है, और बॉडी रिबन लाइक जो कि डाइजेस्टेड फूड लेता है। तो इसमें डाइजेशन सिस्टम, सेल्स, बॉडी कैविटी फॉर्मेशन स्टार्ट होता है लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, समझ में है? उसका कोई फंक्शन नहीं होता है, सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम फॉर्मेशन की बिगनिंग होती है यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम, और इसके रिबन लाइक बॉडी होती है और इसके ऐसे लंबे सेल्स होते हैं और बाद में सेल्स टुकड़े टुकड़े जो होते हैं वो सीधे डिटैच्ड भी हो जाते हैं बॉडी सेल्स से। ये टेपवॉर्म, दे आर पैरासाइट्स, जैसे फ्लेट वर्म या टेपवॉर्म है, और टेपवॉर्म होने से यह आपके ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाता है, इंटेस्टाइन में होता है, और इससे डिजीज होती है टेपवॉर्म से, जिसे हम कहते हैं टीनियसिस। सॉरी, टीनियसिस जो होती है ये टेपवॉर्म से होती है, जिसको कि हम टीनियसिस कहते हैं। प्लेटीहेलमिन्थेस होते हैं, फ्लैट वॉर्म्स होते हैं, बॉडी फ्लैट होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सेल्स होती है, लेकिन इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम बना होता है इनकम्प्लीट। तो ये डाइजेस्टेड फूड लेते हैं, डाइजेशन नहीं होता, खाली हुक होते हैं, सकर्स होते हैं, इंटेस्टाइन। तो जो खाना हम खाते हैं जो तो वो हमारे इंटेस्टाइन से डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है। अगर ये ज्यादा हो जाते हैं जाता है तो हमारी बॉडी डेवलप नहीं हो पाती। ये है प्लेटी। नेक्स्ट ग्रुप आता है निमेटोड्स, जिनको राउंड वॉर्म कहते हैं। इसमें सिर्फ माउथ होता है, एनस नहीं होता है, माउथ होगा एनस नहीं। यहाँ पर निमेटोड्स में एग्जांपल आपका एस्केरिस, मेल और फीमेल, यहाँ डिफरेंशिएशन देखिए सर, मेल एस्केरिस और फीमेल एस्केरिस दोनों अलग होते हैं। ये भी पैरासाइट्स होते हैं, ये बॉडी के अंदर होते हैं, लेकिन इनमें फॉर्मेशन डाइजेस्टेड फूड ही लेते हैं, लेकिन इसमें एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन पूरा हो चुका होता है, स्ट्रक्चर बन गया है लेकिन अभी फंक्शन नहीं स्टार्ट हुआ होता है। समझ में आया? स्ट्रक्चर बन गया है लेकिन फंक्शन नहीं अभी स्टार्ट हुआ। ये है मेल ऐसे, मेल एस्केरिस की टेल कर्व होती है जिसमें पीनियल सीट, फीमेल एस्केरिस मेल की अपेक्षा लंबा होता है और ये ट्रांसपेरेंट होता है। ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होते हैं, बिल्कुल कागज। अगर आप अपने स्कूल में आप स्पेसिमेंस देखिएगा, आपके लैब में सारे स्पेसिमेंस होंगे, ये भी होगा, हाइड्रा भी होगा, टेपवॉर्म भी होगा, एस्केरिस भी होगा, प्रोटोजोन का भी एक्सपेरिमेंट, प्रोटोजोआ की स्लाइड्स होंगी आपके यहाँ, यू आर एबल टू सी इन द माइक्रोस्कोप, देयर यू कैन सी। इसमें मेल और फीमेल डिफरेंट होते हैं, ये अलग। जैसे मैं नहीं कहते इचिंग होती है एनस में, तो इचिंग एनस में तभी होती है जब ये मूवमेंट करते हैं, इनस होते हैं। जैसे बच्चों के पेट में कीड़े पड़ गए लोग कहते हैं, तो ये कीड़े ही एस्केरिस होते हैं। ये जैसे आपके एस्केरिस है, राउंड वॉर्म है, पिन वॉर्म है, हुक वॉर्म है, ये एस्केरिस, ये भी डिजीज करते हैं, जिसको एस्केरियसिस कहते हैं, ASCARIASIS, इसको बोलते हैं एस्केरियसिस डिजीज कॉज करते हैं ये। ये पैरासाइट होते हैं, कई तरह के होते हैं, इनमें मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। फीमेल लंबी होती है, मेल शॉर्ट और कर्व टेल के साथ होती है।
पैरासाइट दे आर नॉट एबल टू मूव, दे आर फॉर्म। ये फ्री लिविंग भी होते हैं, सॉइल और वाटर में भी, ये भी फ्री लिविंग, ये सी सॉइल या वाटर में भी फ्री लिविंग में पाए जाते हैं, और ये पैरासाइट्स भी होते हैं, राइट। नाउ अगेन द नेक्स्ट पार्ट, again we meet in the next video. They will continue with this. Don't forget to see the next one. Thank you class. Again we'll meet in the next video.